So hello everybody and welcome back to another video, right? And इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स फ्रॉम द एजुकेशन राउंड 127, right? That was a div 2. So let's get started. तो प्रॉब्लम ए में क्या दिया था अपने को? लेट मी ओपन अ प्रॉब्लम ए. So प्रॉब्लम ए में क्या दिया था अपने को? We were given four strings, right? We were given four strings A, B, B, right? We can rearrange these strings, right? We can rearrange them. And we can use them multiple times, right? And we can use them multiple times. अपने को बताना था if we can form some string s using these four strings, right? अगर अपने को string s दी हुई थी and we had to tell yes or no कि अगर हम इस string को form कर सकते हैं using these four strings, right? So there is a very simple basic observation here, right? Let's say यहाँ पे कुछ आपकी string है that is made up of b's, यहाँ पे कुछ string है that is made up of b's, right? And बीच में आपका एक single a है, right? Then you can easily see that it is impossible क्योंकि either you can use double A's or either you can use triple A's, right? But there is no way to use a single A, right? So you can never form this. So the answer to this case is no, right? Otherwise अगर बीच में double A's हैं you can form this using double A's. अगर बीच में triple A's हैं you can form this using triple A's. अगर बीच में चार A's हैं you can form this using 2 times double A use करोगे तो ये बन जाएगा, right? So on, right? तो जो आपके सिमिलर कैर्स हैं अगर जो उसकी सबस्ट्रिंग साइज ऑफ दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देन यू कैन ऑलवेज फॉर्म दैट, राइट? तो अपने को बस ये इम्पॉसिबल केस चेक करना है, राइट? नो वाला जब जो अपना सिंगल कैर है सैंडविच है वो दो डिफरेंट कैर्स के बीच में, राइट? सो इफ एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एस ऑफ आई माइनस वन एंड एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एस ऑफ आई प्लस वन देन द आंसर इज नो, राइट? एज सिंपल एज दैट. So if you see my code, that is what I did, right? If s of I is not equal to s of I minus 1 and s of I is not equal to s of I plus 1, then just return false, right? So let's solve problem B now. तो प्रॉब्लम बी में क्या दिया होता अपने को, राइट? प्रॉब्लम बी में अपने को एक्स एक्सिस दी हुई थी, राइट? वी वर गिवन एक्स एक्सिस, राइट? और अपने कुछ पॉइंट दिए हुए थे इस पे, राइट? वी वर गिवन सम पॉइंट्स अप हियर. लेट्स से पॉइंट दिया हुआ है 1 3 5 6 समथिंग लाइक दिस, राइट? And we were given an operation, right? In one operation we can choose every point, right? I can choose this point, right? For every point I can apply an operation, right? So I can choose this point and I can either shift this a unit to the right or I can shift this one unit to the left, right? And I want to tell if after applying this operation at most once at every point, if it is possible to make these points consecutive. Consecutive मेरा क्या मतलब है? If after applying these operations, like we can make them of something like this, right? और ये मेरा point x है, this is x plus 1, x plus 2, x plus 3, right? Something like this. If we can apply this operation on every point at most once, such that they become consecutive, right? So ये problem was like it was also very straightforward as well, right? All you had to do was you had to simulate, right? So सिमुलेशन में क्या है, राइट? जो अपना पहला पॉइंट है, राइट? इन दिस केस, राइट, ये क्या है अपना 1 है, राइट? ये क्या है अपना 1 है. सो अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स कर दोगे, राइट, देन यू कैन सिमुलेट फॉर अदर पॉइंट्स, राइट? तो आपका ये क्या पॉइंट है 1 है, राइट? देन देयर आर थ्री पॉसिबल केसेस, राइट? इधर ये एंड में ये 1 रहेगा, इधर एंड में ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर ये एंड में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट? सो यू कैन जस्ट फिक्स दिस 1, राइट? एक बार इसको फिक्स करो 1 के लिए, एक बार इसको फिक्स करो 2 के लिए, एक बार इसको फिक्स करो 0 के लिए, एंड फाइंड कि अगर इससे आपका आंसर आ रहा नहीं आ रहा, यू कैन देन जस्ट सिमुलेट, राइट? सिमुलेशन से मेरा मतलब क्या है? लेट्स ट्राई टू सिमुलेट, राइट? सो मेरे पॉइंट्स क्या थे 1 3 5 6, राइट? सो लेट मी राइट दिस. मेरे पॉइंट्स क्या हैं 1 3 5 6, राइट? लेट्स सिमुलेट फॉर 0 फर्स्ट, कि अगर जो मेरा पहला पॉइंट है वो 0 होगा, राइट? So if my first point was 0, क्योंकि इसके तीन ही possible cases हैं, either this can become 1, this can become 2 or this can become 0, right? So if this is 0, right, मेरा second point क्या है 3, right? So can I apply an operation on 3 कि ये consecutive हो जाए, right? I can at most make this -1 and this will become 2, but ये कभी consecutive नहीं बन पाएंगे, right? So the answer to this is no, right? Then I will check the second case, right? Then I will check the second case, right?
this is 1, right, क्योंकि हमारा second case क्या है 1, right, and this is 3, right. Then I can apply an operation on this 3, right, मैं इस पे एक operation लगाऊंगा and this will become 2 minus 1, this will now become 2, right. So I'll just erase this, right. मेरा next point क्या है 5, right. Now this is my point 5, right. Now and I apply an operation on this again, this will become 4, right. But 2 और 4 अब भी consecutive नहीं है, right. So the answer to this is no again, right. Now I will check for 2, right. I will check for 2, right. So now मेरा next point क्या है 3, right. ये consecutive है, so I don't need to do anything. Next my point is 5, right. Now I can apply an operation on this, minus 1, this will become 4. Next point is 6, I can apply an operation on this again, this will become 5, right. So now all my points are consecutive, right. So this will become yes, right. So answer to this is yes. So I can apply an operation on this +1 and उसके बाद जो मेरे points हैं I can like simulate my entire array for that, right. So इसने मेरे को आंसर दे दिया yes, so I can just return yes कि हाँ it is possible, right. अगर ये तीनों no देंगे, if it is no, this is no and all of these are no, like तीनों के तीनों no देंगे, then I will just return false, right. So यही इसका solution है. Like there is also an optimization to this, right. Optimization क्या है इसकी, you can आप इस पे you can make a graph and you can like make a general case and you can always prove that कि जो अपने ये वाले केस है ना, like ये these are suboptimal, right. These are suboptimal कि अगर इसके लिए solution है then there is also a solution for this, right. So these two are suboptimal, right. So you only need to check for this case, right. अब ये कैसे होता है, you can prove this using a general case, right. So if I have to prove this, right, I will prove this for the second one, right. So let's say there is solution for this one, right. Let's say आपने point को move नहीं करा, let's say you don't move your point, right. आपका point यहीं पे है, जो आपका main point, let's say this is my pivot point, right. Then आपने ये point move नहीं करा, then जो भी points इस side है ना, right, they will either stay, right, या तो वो वहीं पे रहेंगे और they will move left, right. Either they will stay there or they will move left, something like this, right. तो अगर ये possible है, right, if this is my solution for second case, right, मैं इसको बोल रहा हूँ second case, right. This is my second case, this is my third case, right, this is my first case, right. Solution to second case will look something like this, right. Then I can easily change this solution to third case. So if I have to change this solution to third case, how will I do that, right. I can easily do that, right. I can make this, right, जो मेरा pivot point था, right, वो एक आगे shift हो जाएगा इस बार pivot, जो मेरा ये वाला point जो यहीं पे रुका हुआ था, right, now it will also shift to the left, right, sorry to the right, right. So this will shift to the right, जो मेरे points आगे आ रहे थे, now they will just stay there, right. So similarly you can prove for the first case कि अगर if there is a solution for this case, right, अगर second case के लिए solution है, you can easily say कि यार मेरा third case के लिए भी solution होगा ही होगा, right. So you just need to check for the third case, you don't need to check for first case and second case, right. So you just need to check for third case, right. So that was what I did in the contest. Like ये मेरे दिमाग में आ गया था, but like अगर आप नहीं पता, you can just like run a brute force और आप first के लिए, second के लिए, third के लिए you can easily run, क्योंकि इसमें O of n लगेगा, right. Complexity will be O of n, इसकी भी O of n नहीं होगी, but थोड़ी सी optimization से like you just need to check this once, right. Complexity will not change. So if I have to show my solution for the second one, right. Saving time. Right. तो बस मैंने यही करा, मैंने अपना पहले जो pivot point है उसको मैंने ऐड कर दिया, right. So I was checking only for third case, right. Then मैंने उसको नॉर्मली जो सिमुलेट कर लिया, राइट, कि अगर इक्वल है तो ऐड हो जाए, इफ़ दे आर लाइक अगर ये कॉन्जिक्यूटिव है ही हैं तो कंटिन्यू, अगर जो दूसरा पॉइंट है वो काफ़ी आगे है देन लाइक जस्ट पुश इट वन पॉइंट बैक, अदरवाइज जस्ट रिटर्न फॉल्स, राइट. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक देम कॉन्जिक्यूटिव, right. So this is the solution for problem B, right. So let's move to problem C now, right.
So let's solve problem C now, right? तो प्रॉब्लम सी में क्या दिया आपने को? प्रॉब्लम सी में वी आर गिवन सम शॉप्स, राइट? समथिंग लाइक दिस, लेट्स से A1, A2, A3, A4, so on till AN, right? कुछ ऐसी शॉप्स दी हुई हैं आपने को, राइट? एंड दे आर सेलिंग शुगर, राइट? ये वाली शॉप बेच रही है A1 प्राइस पे, सेकंड शॉप पे सेलिंग एट प्राइस A2, A3, so on, राइट? अपने पास डेली क्या होते हैं? वी हैव X coins डेली, राइट? एंड वी कैन स्पेंड these X coins to buy sugar, right? But the condition is we can at most buy one packet from each shop, right? So we cannot buy two packets from shop 2, shop 1, we cannot buy two packets from shop 2 or so on, right? You can at most buy one packet, right? So we can either we can buy a packet from a shop or not buy anything, right? 1 0, like, so it is something like binary, right? So either we can buy a packet from a shop or we cannot buy it from the shop, right? But we cannot buy two packets from the same shop, right? तो अपने को X coins दिए हैं, right? So we get X coins daily and then after each day the जो shops का प्राइस है वो increase हो जाएगा, right? After day 1 it will increase by 1, right? A1 plus 1, A2 plus 1, A3 plus 1, A4 plus 1, right? And AN plus 1, right? Similarly after day 2 it will increase A1 plus 2, A2 plus 2, right? So on, right? So we need to tell the maximum number of packets that we can buy, क्योंकि after some time इनका price बहुत ज़्यादा increase हो जाएगा, right? And then we will not be able to buy anything, right? So we need to tell the maximum number of packets that we can buy, right? So how can we do that? Let's see that, right? पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है, right? That we will always buy greedily, right? We will always buy greedily. मतलब क्या है इसका? जिस शॉप का प्राइस सबसे कम है वी विल ऑलवेज बाय पैकेट्स फ्रॉम दैट फर्स्ट. सो बाय फ्रॉम चीपेस्ट शॉप फर्स्ट, सॉरी, चीपेस्ट शॉप फर्स्ट, राइट? सो मैं पहले इसको सॉर्ट कर दूंगा, राइट? आई विल सॉर्ट ऑल द एलिमेंट्स, राइट? सो दिस विल बिकम A1, A2, A3, so on till AN, right? This will look something like this, right? अभी सब sorted है, so I will assume कि जो मेरा A1 है that is less than A2, less than A3, and so on, right? You can try to calculate the number of sugar कि you can buy on each day, right? So if there is day 1, you can calculate कि आप इस day पे कितनी sugar buy कर पा रहे हो, the number of shops you can buy from on each day, right? You can try to find that. बट ये काफ़ी हार्ड होगा, राइट? क्योंकि द नंबर ऑफ डेज इसमें कोई पैटर्न सा नहीं है, राइट? दे आर नॉट रिलेटेड इन एनी वे, राइट? हो सकता है आप पहले दिन 5 पे खरीद पाओ, दूसरे दिन 3 पे खरीद पाओ, तो देर इज नो काइंड ऑफ रिलेशन इन देम, राइट? द बेटर अप्रोच हियर विल बी कि आप काउंट करो द नंबर ऑफ डेज यू कैन बाय पैकेट फ्रॉम दिस शॉप, राइट? कि आप कितने दिन इस शॉप से पैकेट खरीद पाओगे, राइट? हाउ विल यू फाइंड दैट? इट इज़ प्रीटी ईजी, राइट? यू कैन यूज बाइनरी सर्च, क्योंकि ये जो फंक्शन है इट इज़ लाइक यू कैन ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स, राइट? अगर ये एक लेट्स कॉल दिस डी डे, राइट? सो इससे पहले यू विल ऑलवेज बी एबल टू बाय फ्रॉम दिस शॉप, राइट? सो द आंसर टू दिस विल बी येस, आई कैन बाय, राइट? एंड आफ्टर डी डे यू विल नेवर बी एबल टू बाय, राइट? सो यू कैन ईजिली अप्लाई बाइनरी सर्च ऑन दिस एंड फाइंड दिस डे, राइट? कि आप कितने दिन इस शॉप से पैकेट खरीद पाओगे, राइट? So that will be the solution to the problem, right? How can you do that? Let's see that, right? तो अभी मैं पहले शॉप पे हूँ, right? So I have X coins to me, right? So I can binary search कि मैं X coin से कितना खरीद सकता हूँ, right? So I can let's say my lower day is equal to 0, my higher day is equal to 1 e to the power 9, right? So that is 10 to the power 9. So my mid will be low plus I by 2 and L plus H by 2, right? तो ये मेरा करंट डे है, राइट? सो द प्राइस ऑफ इस शॉप का करंट प्राइस क्या होगा? द प्राइस ऑफ दिस शॉप राइट नाउ इज एट दिस डे विल बी AI plus X, sorry, AI plus mid, right? So I need to check if my X is greater than or equal to AI plus mid. मैं इस डे पे बाय कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, राइट? इफ आई कैन बाय, I can update my lower pointer, right? Low is equal to mid. Otherwise I can decrease my higher pointer, right? So that is basically how I will binary search, right? Also how will you calculate it for A2, right? यहाँ पे तो हमने सीधा निकाल लिया, but how will you find it for A2, right?
तो to find for a2 I will keep a prefix sum, right? So the amount that I've used so far is a1, right? So the prefix of this is a1, right? So my low here will be also equal to 0, my high will be equal to 10 the power 9, right? ये मैं फाइंड कर रहा हूँ a2 के लिए. हाउ विल आई फाइंड दिस फॉर a2, क्योंकि a1 के लिए तो बहुत ईजी है, राइट? a2 के लिए थोड़ा मतलब हार्ड नहीं होगा, थोड़ा ट्रिकी होगा सॉल्व करना, राइट? सो माई मिड विल बी l प्लस एच बाई 2, राइट? सो इसलिए मेरा वट विल बी करंट प्राइस ऑफ माई शॉप, राइट? मेरा प्राइस का शॉप क्या होगा? a2 प्लस मिड. और मेरे पास कॉइन्स कितने होंगे? अब मेरे पास x कॉइन्स नहीं होंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब मेरे पास x कॉइन्स नहीं होंगे, राइट? नो आई विल नॉट हैव x कॉइन्स, क्योंकि मैंने x कॉइन्स तो पहले, क्योंकि मैंने शॉप 1 से भी तो बाय कर लिया, राइट? आई हैव ऑलरेडी बॉट फ्रॉम शॉप 1, राइट? तभी मैं शॉप 2 पे बाय करने आया हूँ, राइट? सो आई हैव ऑलरेडी बॉट फ्रॉम शॉप 1, राइट? सो मैंने वहाँ पे कितने कॉइन्स स्पेंड करे होंगे, राइट? हाउ मेनी कॉइन्स वुड आई हैव स्पेंड देयर, राइट? सो आंसर दैट विल बी, जो मेरा प्रीफिक्स है वो, और जो उस शॉप का प्राइस आज होगा, उस शॉप का प्राइस आज क्या होगा? प्लस मिड, राइट? क्योंकि जो शॉप a1 है उसका प्राइस भी तो आज a1 प्लस मिड होगा, राइट? सो आई हैव ऑलरेडी यूज्ड a1 प्लस मिड नंबर ऑफ कॉइन्स, राइट? सो आई कैन से the number of coins I have left are x minus coins used, right? And how will I find this coins used thing, right? The coins used will be my prefix, right? Prefix plus that is आज में कौन सा डे है, right? And then the number of shops, right? इससे पहले कितनी shops थी, shops before this, right? So that is how I will find coins used, right? So और यहाँ पे greater than आएगा, right? So अगर मेरे पास coins हैं to buy a2 plus mid, I will buy this and I will update low. Otherwise I will update my higher point, right? So that is how I will use binary search on this, right? So that was the solution to this problem, right? So if you see my code here, right, every binary search, this is low equal to 0, high is equal to 1 in 9 plus 7. ये मेरी करंट वैल्यू है, राइट? द करंट वैल्यू जिसमें मतलब शॉप अभी बेच रही है, राइट? मतलब शॉप का करंट प्राइस क्या है, एंड देन दिस इज माई करंट एक्स, राइट? करंट एक्स मतलब मेरे पास कितने कॉइन्स पड़े हुए हैं, राइट? सो इट इज़ एक्स इंटू मिड माइनस 1, ये मेरा क्या है? डेज हैं. दिस इज इंडेक्स क्या है? नंबर ऑफ शॉप्स, राइट? सो इफ यू सी माई कोड, राइट, जो मैंने यहाँ पे शॉप्स बोला है, दिस माई शॉप्स बिफोर, दिस इज माई इंडेक्स, राइट? दिस इज माई नंबर ऑफ डेज, राइट? और फंक्शन में जो मेरा प्रीफिक्स है, राइट, इट इज़ द नंबर ऑफ शॉप्स दैट आई हैव सीन बिफोर, राइट? सो दैट इज जो मैंने x है, राइट? x मैंने पास कर रखा है प्रीफिक्स, राइट, ऑलरेडी. सो इफ माई करंट x इज ग्रेटर देन करंट वैल्यू, आई कैन से आंसर इज इक्वल टू मिड, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, अदरवाइज हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, राइट? जब मैंने आंसर में नॉर्मली ये ऐड किया, फाइंड डेज वी आई एक्स माइनस प्रेफ एंड आई. ये मैंने यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा प्रेफ, क्योंकि मैंने x में पहले ही मैंने x माइनस वो पास किया प्रेफ, राइट? सो जो मेरी ये टर्म्स थी, राइट, जो मेरे इफ यू राइट दिस टर्म x माइनस कॉइन्स यूज्ड, राइट, आई कैन राइट दिस एज x माइनस प्रेफ माइनस मिड इनटू शॉप्स बिफोर दिस, राइट? मैं ऑलरेडी जो ये वाली टर्म है, आई एम पासिंग इट एज x इनटू माय फंक्शन, राइट? सो दैट इज वाई आपको वहाँ पे x माइनस मिड इनटू इंडेक्स दिख रहा है, राइट? दैट इज वाई जो वहाँ पे फॉर्मूला क्या है, दैट इज x माइनस मिड इनटू इंडेक्स, राइट? ये तो ऊपर जब प्लस माइनस 1 का डिफरेंस है वो तो होता ही है, राइट? सो राइट, सो दैट वाज द आंसर. You need to find this for every shop, right? So iterate from first shop to the last shop and find this for every shop, and you will find the answer for this, right? So let's start with problem D now, right? तो problem D में क्या दिया था अपने को? Problem D में we were given an array, right? Something like A1, A2, A3, A4, something like this, and we were given points from 1 to x, right? 1 2 3 and x, right? अपने को ये x एलिमेंट्स इंसर्ट करने थे
इस एरे के बीच में, राइट. वी हैव टू इंसर्ट दिस एक्स एलिमेंट समथिंग, कहीं भी इंसर्ट करो, राइट. सो जो न्यू एरे बने B1 B2 B3, इसमें n थे, इसमें x b में हो गए n प्लस x एलिमेंट्स, राइट. तो जो इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस है, राइट, फॉर ऑल i, राइट, bi माइनस bi प्लस 1, जिसका एब्सोल्यूट डिफरेंस है, इट शुड बी मिनिमाइज, राइट. इट शुड बी मिनिमाइज, राइट. सो अगर आप इसको एज अ लाइक इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस एज अ एरे, यू विल फाइंड दिस हार्ड, राइट. सो मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, आई थॉट ऑफ इट एज अ ग्राफ, राइट. तो मैंने कैसे सोचा इसके बारे में. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ, राइट. सो लेट्स टेक ये वाला केस, राइट. x इज इक्वल टू 8 एंड पॉइंट्स आर 7 2 and 10, राइट. सो x is equal to 8 and points are 7 2 and 10, right. So if you draw a graph, right, 1 से x mark करो, right. This is 1, this is x क्या है यहाँ पे 8 है, right. Then let's draw a graph 7 2 and 10, right. So this is my 7, right, and this is my 2 and this is my 10, right. अगर आप देखोगे, राइट, इसमें एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स इज इक्वल टू 5 एंड, राइट. एंड आप जो मर्जी कर लो, राइट, एब्सोल्यूट डिफरेंस इन एलिमेंट्स का कभी भी कम नहीं होगा, राइट. इट विल ऑलवेज बी 5 और मोर देन 5, राइट. सो हम इसका फ़ायदा उठाएंगे, राइट. अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस 5 है ही है तो वी कैन लाइक जो अपने एलिमेंट्स हैं, राइट, वी कैन प्लेस देम इन हियर. जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो 5 ही है, राइट. सो बट आई मीन इज, राइट, आई कैन ईजिली प्लेस माई एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to x here, right. I can easily place 3 here, 4 here, 5 here. Similarly, I can place 6 here and 7 here, right. तो राइट, जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, राइट. एब्सोल्यूट डिफरेंस पहले भी क्या था, इसका 5 था एंड अब भी क्या है, 5 है. सिमिलरली एब्सोल्यूट डिफरेंस इस साइड भी क्या था, एब्सोल्यूट डिफरेंस इस साइड भी क्या था, 8 था और अब भी क्या है, 8 है, राइट. तो हमने अपने एलिमेंट्स प्लेस कर दिए, बट जो हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस है उसमें कोई इंक्रीज नहीं हो, राइट. सो दिस इज़ वेरी गुड, राइट. अब केस आता है कि जो ये मेरा ग्राफ है, राइट, इट विल कवर मिनिमम ऑफ ए टू मैक्स ऑफ ए, राइट. अब मेरा मिनिमम क्या था 2 और मेरा मैक्स क्या था 10. तो मैंने 2 से लेकर 10 तक तो मेरे सारे पॉइंट्स कवर हो गए, राइट. बट जो मेरे एलिमेंट्स मिन से छोटे होंगे, जो मेरे एलिमेंट्स मिन से छोटे होंगे और 1 से बड़े होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सिमिलरली जो मेरे एलिमेंट्स मैक्स से बड़े होंगे और लेस देन इक्वल टू एक्स होंगे, उनका क्या होगा, राइट. सो फॉर देम हमें उन्हें मैनुअली प्लेस करना पड़ेगा, राइट. हाउ कैन वी प्लेस देम मैनुअली. सो लेट्स सी दैट. सो अब मेरे को प्लेस करना है 1, राइट. राइट, सो नाउ आई नीड टू प्लेस 1 समवेयर. सो लेट्स से आई प्लेस 1 here, right. But it's not selecting, right. So let me take another color, right. So let's say I place 1 here, right, like here. तो अब देखोगे 6 से मैंने ड्रॉ किया 1 तक, 7 से मैंने ड्रॉ किया 1 तक. Let me draw this better. अब तुम देख रहे हो ये बहुत बड़ी स्पाइक आ रही है, राइट. कितना बड़ा डिफरेंस है, राइट. दिस इज +5 एंड दिस इज +6, राइट. तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया. So I can like draw another here, right, +5 here, right. तो जो मेरा पहला जो मेरा डिफरेंस था, राइट, वो 8 था, पर अब मैंने 1 अगर मैंने यहाँ प्लेस कर दिया तो यहाँ पे 5 और ऐड हो गया और 5 ऊपर जाने का दोबारा ऐड हो गया, राइट. सो दिस एडेड एब्सोल्यूट डिफरेंस मेरा कितना ऐड हो गया, 10 ऐड हो गया, राइट. सो दिस इज़ नॉट वेरी ऑप्टिमल, राइट, क्योंकि मैंने इसको प्लेस किया है जहाँ पे बहुत ही मेरा हाई हाइट है उसके पास प्लेस कर दिया मैंने. सो दैट इज़ नॉट ऑप्टिमल, राइट. So what I should do is I should try to place it as low as possible, right. So मैं 1 को कहाँ प्लेस कर दूँगा, I will place it near 2 और 3 के पास में, right. So I will place it here, right. यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये बना, यहाँ से ये बना. अब देख रहे हो कितने छोटा हाइट है, यहाँ कितनी बड़ी हाइट थी, बट यहाँ पे कितनी छोटी हाइट बन रही है, राइट. सो इफ़ यू ड्रॉ हेयर, राइट, यहाँ पे +1 का ऐड हुआ, यहाँ भी +1 का ऐड हुआ, राइट. सो इसमें कितना ऐड होगा, टोटल +2 ऐड होगा. यहाँ पे कितना ऐड होता है, यहाँ पे ऐड होता +10, राइट. सो इट इज़ ऑलवेज ऑप्टिमल कि जो आप छोटे एलिमेंट्स प्लेस कर रहे हो, ये 1 के राउंड वाले, प्लेस देम नियर टू जो आपका मिनिमम एलिमेंट है उसके पास में, राइट. सो इफ आई हैव टू ड्रॉ अनदर एग्जांपल, राइट, टू मेक दिस मोर क्लियरर, राइट. लेट्स से आपका मिनिमम एलिमेंट क्या है, 5 है, राइट. सो ये आपका 1 आ गया,
एक कुछ भी बन गया आपका, लेट्स से राइट। ये आपका क्या आ गया 5, ये आपका क्या आ गया राइट, जो आपने एलिमेंट प्लेस करा लेट्स से 6 राइट। सो नाउ यू वांट टू प्लेस 1 2 3 4 राइट, क्योंकि आपके 5 से जो ऊपर के एलिमेंट्स वो तो प्लेस हो गए, बट जो 1 2 3 4 वाले एलिमेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे कोई जगह ही नहीं थी राइट। सो नाउ आई वांट टू प्लेस 1 2 एंड 3 4 राइट। सो जैसे मैंने पहले बताया था राइट, ऑलवेज ट्राई टू प्लेस देम जहाँ पे हाइट छोटी है राइट, एंड मेरा मिनिमम एलिमेंट क्या है, मेरा मिनिमम एलिमेंट हियर इज 5 राइट। सो आई विल ट्राई टू प्लेस देम नियर 5 राइट। सो आई विल प्लेस 1 हेयर राइट, ये मेरी क्या बन गई, लाइन बन गई राइट। कितना ऐड हो गया, ये ऐड हो गया +4, ये ऐड हो गया +4 राइट, टोटल क्या ऐड हो गया +8 राइट। सो मैंने 1 को कर दिया प्लेस राइट। अब मैं 2 3 4 कहाँ प्लेस करूँगा, क्या मैं 2 3 4 के लिए अलग से बनाऊँ, लाइक 2 के लिए मैं दोबारा बनाऊँ राइट। सो इफ आई मेक न्यू फॉर 2 समथिंग लाइक दिस, तो ये मेरा और ऐड हो जाएगा राइट, दिस विल ऐड समथिंग एक्स्ट्रा। बट अब अगर तुम देखोगे राइट, यू हैव अ न्यू ग्राफ राइट, यू हैव अ न्यू ग्राफ। अब जो ये वाला एज है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता राइट। जो तुम्हारा करंट मिनिमम क्या बनेगा, तो योर न्यू मिनिमम नाउ इज इक्वल टू 1 राइट। तो जब 2 3 4 है, यू कैन प्लेस देम हियर, यू कैन प्लेस देम 2 3 एंड 4, और आपकी कॉस्ट में कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा राइट। तो जब आपने 1 को प्लेस किया तो आपने 2 3 4 को ऑटोमेटिकली कर दिया प्लेस फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट राइट। सो यू ओनली नीड टू प्लेस 1 राइट, एंड जो आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट है 2 3 4 का वो नहीं आएगा राइट। सो दैट वाज द ऑब्जर्वेशन राइट। ऑल्सो देयर इज अ कॉर्नर केस राइट। तो कॉर्नर केस क्या है राइट, लेट्स सी द कॉर्नर केस ऑल्सो राइट। ये मतलब प्रॉब्लम थोड़ी मतलब केस वर्क वाली ही है राइट। सो यू नीड टू मेक केसेस एंड चेक राइट, एंड हियर इज अ कॉर्नर केस राइट। कॉर्नर केस क्या है, लेट्स से मेरा x इज इक्वल टू 8 एंड लेट्स से 4, मेरी एरे क्या है 4 3 5 एंड लेट्स से 10 right. So if I draw this will become 1, this will become 8 right, and this is 4, this is 3, this is 5, this is 10 right. तो दिस इज, तो जो 3 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स है वो तो मतलब ऑलरेडी हम प्लेस कर देंगे लाइंस के ऊपर राइट। अब मेरे को प्लेस क्या करना है 1 राइट, क्योंकि जैसे मैंने बताया यू ओनली नीड टू प्लेस 1 राइट, और जो 2 3 4 हैं वो अपने प्लेस हो जाएंगे राइट। सो आई ओनली नीड टू प्लेस 1 राइट। और मैंने क्या बताया था, यू प्लेस 1 नियर द मिनिमम एलिमेंट। तो यहाँ मेरा मिनिमम एलिमेंट क्या है 3। सो यहाँ पे आई कैन प्लेस अ 4 हेयर राइट, जो मतलब जो मेरा ग्रीन वाला 4 है, मतलब जो मेरे को x से 4 मिला है राइट, आई कैन प्लेस इट हेयर, देन आई कैन ट्राई टू प्लेस माई 1 हेयर राइट। मैंने 1 यहाँ प्लेस किया राइट, समथिंग लाइक दिस। सो इसमें मेरा कितना ऐड होगा +2 एंड +2 राइट, कितना ऐड होगा टोटल +4 राइट। टोटल कितना होगा, क्या कितना ऐड हो गया +4। बट इसमें कॉर्नर केस क्या है लाइक, इस केस में इट इज़ नॉट ऑप्टिमल टू प्लेस 1 हेयर, इंस्टेड इट इज़ ऑप्टिमल कि आप 1 को कहाँ प्लेस कर दो, कॉर्नर के पास राइट। सो इफ यू प्लेस इट इन द कॉर्नर राइट, 1 यहाँ आ गया आपका, एंड यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट बना, यहाँ एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना आया +3 राइट, जो कि +4 से कम है राइट। सो दिस इज द कॉर्नर केस राइट। आप तो सो यू नीड चेक फॉर 3 केसेस, इधर आप इसको प्लेस करो मिनिमम के पास में, और यू प्लेस इट नियर द कॉर्नर राइट। तो ये आपको 2 बार चेक करना पड़ेगा राइट। सो दैट वाज द ओनली कॉर्नर केस। So now we have a solution right। solution क्या बोलता है right, if मेरा minimum of a है, मेरा maximum of a है, I can easily place minimum of a से लेके max of a elements right, elements on existing lines, right। Now I only need to care about elements right, I only need to care about elements that are less than minimum of a and greater than equal to 1 right। So to handle these I can place 1, to handle this I can place 1 right, and 1 का ऑप्टिमल क्या है, ऑप्टिमल वेज क्या है इसको प्लेस करने के, either
place near corners or minimum of A, right? Similarly, symmetry say, right, you can say similar case for elements that are greater than max of A but are less than equal to X, right? For them I can just place X, right? और जो x minus 1 x minus 2 है वो सही लाइन पे आ जाएंगे, right? Like 2 3 4 for 1, right? So इसके लिए ऑप्टिमल क्या होगा? Optimal for this will be either place near corners or max of A, right? So that was the solution to this problem, right? यही करना है आपको. It is very easy. So इसके बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल था, राइट? सो मैंने आई थॉट ऑफ इट इज़ अ ग्राफ एंड लाइक मेरे को सोल्यूशन ऐसे आया. सो इफ़ यू हैव अनदर अप्रोच यू कैन शेयर इट इन द कमेंट्स, राइट? सो लेट्स सी द सोल्यूशन फॉर दिस, राइट? सो मैंने पहले मिनिमम एलिमेंट निकाल लिया और मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लिया, राइट? देन मैंने जो मेरा आंसर है, राइट, वो एब्सोल्यूट डिफरेंस है v of i minus v of i minus 1, राइट? तो मैंने चेक कर लिया कि अगर मेरा मिनिमम एलिमेंट है वो 1 से बड़ा है, सो नाउ आई नीड टू प्लेस 1, राइट? मेरे को 1 प्लेस करना है तो 3 केसेस हैं. इधर मैं उसको प्लेस करूँ एंड में, राइट, एट द एंड, इधर इन द बिगिनिंग. तो ये मेरे कॉर्नर केसेस हो गए, राइट? दीज आर माई कॉर्नर केसेस. और द सेकंड ऑप्शन इज आई प्लेस इट नियर माई मिनिमम, राइट? मिनिमम के पास मैंने प्लेस किया. सो इफ आई टू ड्रॉ द ग्राफ वंस अगेन, राइट, ये मेरा मिनिमम आ गया, मेरा ऐसे ग्राफ ऊपर जा रहा है, राइट? आई प्लेस 1 हेयर, राइट? मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या आएगा? मिनिमम माइनस 1 मिनिमम माइनस 1, राइट? सो कॉस्ट विल बी 2 times मिनिमम माइनस 1, राइट? सो मैंने यहीं पे यही चेक किया बस, राइट? सिमिलरली फॉर द सेकंड केस, राइट? सो दैट इज द सोल्यूशन फॉर दिस, राइट? तुम देख रहे हो सोल्यूशन बहुत छोटा है इसका, राइट? द इम्प्लीमेंटेशन वाज नॉट दैट हार्ड. जो इसके केसेस बन रहे थे इट वाज ओनली हार्ड टू चेक फॉर देम, राइट? So I hope you guys like the solutions. Also, if you have any doubts, you can ask me in the comments, right? I will be happy to answer. Also, I want to thank Newton School for helping me with this channel. If you guys don't know, currently, let's go to the site to boot up, right? So if you guys don't know, currently they are offering a full stack development course, right? It is totally based on pay after placement model. You don't need to pay anything, right? And they will get you placed like free of cost, right? There is zero upfront fees, there is zero hidden fees, right? And the minimum package that they are offering is rupees 5 lakhs, but the average package is around 7 lakhs and the highest package is rupees 26 lakhs, right? So you can crack up to rupees 26 lakhs as well, right? Or more if you want, right? So your name will be here then. So yeah, and all their mentors, right? All their mentors are from top MNCs like Google, Microsoft, Fang, right? All of them are from very reputed MNCs, right? So you can be assured कि जो content मिल रहा है, content is top notch. There will be no compromise with the quality of the content or the quantity either, क्योंकि the course is more than 6 months, right? So you will be taught from scratch, and then they are assuring that you will get into top MNCs like Google, Flipkart, Zomato, etc., right? एंड अगर आपको लगता है आपको कोडिंग नहीं आती है, फिर हेजिटेंट मेरे को कोडिंग नहीं आती है, हाउ विल आई कोप अप, राइट? यू डोंट नीड टू वरी, दे विल सिंपली आस्क यू एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट? एंड इफ यू डू वेल इन दैट you will be easily signed up for the course and they will teach you from scratch, right? So you don't need to worry about that. So if you guys want to sign up, the link will be down below. You can go and sign up from there. Yeah, so that was it for the video and I will see you guys in the next one. Bye bye.